Hey, hi guys, and it's Katie, and it's Katie's makeup, and I'm Katie, and today's video is gonna be very candid and very personal also. It's not about makeup, and it's not about because you can see I have not done a lot of makeup, and these मैंने मेरे बाल भी ज़्यादा बनाए हुए नहीं है because of Shivratri and everything. I have been like really busy with Shivratri, and because I used to I always I don't used to, sorry for the noise जो कि बाहर से आ रही है, sorry for the noise and interruptions. Okay, so yeah, so I'm in my hoodie, and I have not wear any fancy clothes, and I don't feel the fact that we really need to wear fancy clothes for doing makeup or anything like that, because makeup is only about your face, your personality. You should feel good when you are in makeup, you should not feel that you're completely in some other person's character or skin. You should be very comfortable in your own skin, because I only do makeup on screen. I don't do makeup all the time. एंड वेनेवर आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई वीडियो, सब तरह की गाड़ियाँ आने लग जाती है, आई डोंट नो वाई. और बाकी अगर जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तब पूरी रोड जो है वो हर वक्त क्लीन और कंप्लीटली विदाउट एनी व्हीकल्स रहती है. जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हूँ, अचानक की सारी गाड़ियाँ आने लगती है, पता नहीं क्यों. So I always prefer making video in the night, but these days I am changing my biorhythm and everything. And so biorhythm is only your the sleeping clock, and the clock of your body, and like, right. So yeah, so this video is gonna be like really personal, up close and personal with me. And I'm making this video because a lot of people, I don't know how many people are gonna watch this video, because I don't know how many people are subscribing me, because only 33 people are subscribing me. And I don't think so that they are from my city also. But yes, I want to clear this thing out. I have done, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि मैंने अपने फेस पे भी क्या किया है. मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्राइलॉन कंपनी का कंसीलर यूज़ किया है अपने फेस पे, थोड़ी सी आईब्रोज बनाई है, थोड़ा सा बहुत लाइट न्यूड आई शेडो यूज़ किया है, मस्कारा लगाया है, और जस्ट लिप बाम लगाई है. सो दिस इज़ ओनली इट. एंड थोड़ा सा कंटूर, थोड़ा सा ब्राउनजिंग की है, ब्राउन आई शेडो से. सो दिस वन इज सो दिस इज इट, एंड दिस इज द ओनली मेकअप आई हैव ऑन माई फेस. सो आई नो वैसे भी काफ़ी नेचुरल आ रहा है. तो द थिंग इज कि टुडे आई एम डूइंग दिस मेकअप चैनल थिंग, ओके. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज very sorry the notification. I'm very happy about this makeup thing, because it's the creative thing which I wanted to do in my life. I kind of took a lot of time to see. I'm not saying anything offensive towards technical people, towards people who are working in IT firms, who are working in who have done engineering in software field and everything. I'm not saying anything offensive to these people, but see, we all have a calling, we all have something जो कि हमारे लिए बनाया गया है, जो कि हमारे लिए जो कि जिसे हम सबसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे. एंड आई एम ऑलवेज अ क्रिएटिव पर्सन. व्हेन आई एम नॉट क्रिएटिव, आई डोंट फील
flowing, flowing or going somewhere. I feel stuck when I feel that okay, you have to be in routine or you have to do this and that. I'm very routine oriented person also, in my life, कि अगर आज मुझे वीडियो बनाना है तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी, एंड that is one thing. Okay, this is kind of like a business, but I cannot breathe इन अ जॉब जो कि 9 से 10 बजे तक की है, सुबह 9 बजे जाना है, रात को 10 बजे जाना है. आई कैन नॉट ब्रीद इन दैट काइंड ऑफ एटमोसफेयर और सिनेरियो. So the thing is that I only making this video to clarify. It's a very old story, and it's a very but everyone knows this in my city because I live in Bhilwara. Okay, I don't want to disclose where I live. So this is a very small city, and if any people who are from my city, I can even sing this song in my city of Priyanka Chopra. Yeah, I'm not gonna. So because I don't sing very well. Yeah. So the thing is that I was 18 years old, and uh, I should carry on with my subjects. I was from arts stream, and my mother has come and told me that a lot of people are doing arts and this and that, and you should do some other course. And I was like I was like a very big fool. Uh, I would always regret my foolish decisions I have taken. And as a pagal ladki, as a crazy person, I took this decision that whenever you do BA or whenever you do MA or MEd or PhD or whatever, people don't acknowledge these degrees anymore. You have to do some kind of technical degree, or you have to do some kind of different thing जो कि लोगों को बताने में अच्छी लगे. I mean, that is such a crazy thinking. And then I was like that okay, my mother told me that this is a college near to our home, and you can go and you can come. But see, if you are leaving your stream and you are doing something else, then you have to be prepared that whatever going in class, you are not able to get it. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी दैट आई वॉज द वन पर्सन हु ऑलवेज सेट हिज कैमरा, who always told the teacher that okay, I'm not getting what you are teaching me. And these people were like really crazily irritated by me that why this girl cannot lie to herself and to us also. एंड आई वॉज द वन पर्सन हु इज़ लाइक कि नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड मैं झूठ क्यों कहूँ कि मुझे समझ आ रहा है, कि मैं इतनी व्हाट कैन आई से, मैं इतनी शार्प हूँ कि मुझे ये जो दूसरी सब्जेक्ट की चीज़ है समझ में आ रही है. तो नो वन वॉज लाइक helping me at that place. At that moment, my grandfather was very ill. He used to wake up. It's okay, guys. I really have to tell you guys this thing, that this is not a video where I am I'm clarifying or something like that. I just want to give us okay, fine. The why I'm making this video, the motto of this video, or the purpose of this video is gonna come in the end. Okay, so yeah, guys. So my grandfather was very ill at that moment. वो पूरी रात जगते रहते थे और बोलते रहते थे. उसकी वजह से मेरे 2 लेक्चर जो सुबह के हुआ करते थे वो तो छूट ही जाते थे, और बाकी मैं कॉलेज कैसे जाती थी ये मेरी आत्मा जानती है. एंड वी वर डूइंग द सेवा, और मेरे grandfather and my granny and my grandfather was the only people I live with at that moment. Okay, and he used to shout all the time because he
was I don't know why he has lost his mind, and he was like completely like lunatic, and it was very painful at that moment. एंड वो मुझे पढ़ाई लिखाई भी नहीं करने देते थे एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो हर वक्त उस समय लाइक ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एंड शाउटिंग एंड शाउटिंग. सो I used to go to this college, and whenever I go to my dean and I like to I wanted to seek because in green my green olive eyes वाले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी बातें कही थी जो कि काफ़ी क्लूलेस थी. तो मैं आपको पूरी तरीके से वो बात बताना चाहती हूँ कि आपकी बात जो है वो क्लूलेस ना रहे. मतलब मेरी बात वो जो है वो बाहर आई थी तो क्लूलेस ना रहे. मतलब मैं क्रिएटिवली अपना मेकअप करते करते मैं काफ़ी कुछ बोल गई थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो बात है वो मेरे सब्सक्राइबर्स को ही काफ़ी क्लूलेस लगे, या कोई भी XYZ कोई भी उसे देखे, XYZ कोई भी उसे देखे और उसे वो क्लूलेस लगे. तो जब भी मैं जाती थी अपनी डीन के पास, she was like कि नहीं यू शुड कैरी ऑन विद आवर कॉलेज एंड तुम्हें समझ आने लगेगा, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ है, तुम देख लो, अगर तुमको यहाँ नहीं करना है तो. अगर मैं उनसे कहती कि मेरा जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझे अच्छी एडवाइस भी दे सकती थी कि बेटा अगर तुम्हें तुम्हारा सब्जेक्ट चाहिए, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, या अगर वो मुझे और बर्डन कर देती थी कि आई वोंट टेक नेम बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू टेक सम नेम. आई कैन टेक नेम बट आई डोंट वांट टू. but I can tell you that I did that college was associated with the Sikkim Manipal University distance learning. वो हमें डिस्टेंस लर्निंग सिखा रहे थे, बट इतने नाटक के साथ, oh my god, it was a very very bad place. I'm telling you, this lady was a cruel person. That lady was like a poison ivy. She is so irritating. She is crazily सिर्फ अपने पैसों के फायदे के लिए she is misguiding so many students. और बस बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, बस बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनके बैक लगातार बैक आती रहती, और वो जो बैक उनके आती थी उसको वो लोग फॉलो करने के लिए, मतलब वो जो सीनियर्स, जो मेरे सीनियर्स थे वो अभी भी वहाँ सीनियर्स ही हैं. सो आई डोंट नो कि वो अभी भी वहाँ सीनियर्स हैं या नहीं. सो वन इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस होल वीडियो. कि मैं सबसे कहती रहती थी कि मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मेरी हेल्प करो, एंड कोई मेरी हेल्प नहीं करता था. मतलब हमारी क्लास में बहुत सारे लड़के थे, लड़कियां बहुत कम थी, और कोई मेरी हेल्प नहीं करता था. और जब हेल्प की बात आती थी तो कोई कोचिंग के बारे में नहीं बताता था, कोई ये नहीं बताता था कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड बिकॉज आई डिड नॉट नो, बिकॉज आई लैक ऑफ द नॉलेज एंड एवरीथिंग, I went to Diwali function, and it's very normal in our college कि कोई ना कोई सीनियर होगा जो डिजी कैम से हमारे पिक्स लेता रहता था. And at that moment I did not know about Facebook, about internet, about anything which is relevant at that moment, you know. So one guy took my मैंने एक हमारी क्लासमेट, मतलब मेरे जो क्लासमेट थे, माय क्लासमेट्स की शिकायत मैंने की थी कि उन्होंने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया कि जब कभी भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है, कृति आ जाती है ऐसा समझ के, और जब टेस्ट होता है तो वो, जब एग्ज़ाम होता है तब वो नहीं आती. एंड आई वॉज लाइक आई गॉट रियली इरिटेटेड बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ हेल ऑफ अ टाइम. ओके, एंड आई वॉज लाइक कि अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसा कुछ चल रहा हो तो तुम लोग कितने आते हो मैं भी देखती हूँ. एंड आई इन दैट एंगर मैंने मैम से कह दिया, एंड उन लोगों को मैम ने डांट दिया, एंड उनकी काफ़ी खिल्ली उड़ गई बेसिकली क्लास में. तो मैं 2 महीने तक कॉलेज नहीं गई थी,
and I was just trying to find a teacher for myself to coach me, to mentor me, to guide me कि अब इन subjects को मुझे कैसे पढ़ना है, learn करना है. Okay, so my mother has thrown the ball on me and उस पर मैं गिर चुकी थी पूरे तरीके से. और मेरी मम्मी का मोटो सिर्फ ये था कि कहीं ये जल्दी मतलब कमाने ना लगे, जल्दी अर्न ना करने लगे. क्या पता उनका मोटो क्या था. उनका मोटो अच्छा भी हो सकता है कि BA MA करने वालों की आजकल को ज़्यादा पूछ रही थी, पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह की बात कही. और अगर उन्हें इस तरह की बात ही करनी थी तो उन्होंने 11th-12th में मेरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान क्यों नहीं दिया. शी वॉज ऑलवेज वेरी इन हर सेल्फ, in her own cloud. She is a very perfect version of herself. She never guided me, and then she suddenly guided me when I was like not in that place to guide. So she was behaving weird with me, and I took these subjects, and my dean completely misguided me because of the money and everything. So I was there is a ma'am, there is a, I don't want to take name, whether I take name or not, this doesn't matter, because you guys won't know her, know her, because you guys, I don't know if you are from my city or from not, or from which city. I'm just making this video because I want to clarify everything. Okay, so because I want to clarify, okay, and because it affects me, it doesn't affect anyone. People have just forgotten this thing, that okay, this type of girl was in our college and this and that, but clarifying things are very important, because I am very worried about my image. So yeah, so at that moment I was stuck and I was very irritated. I was very not at no, I was not feeling myself. I was feeling, it was a very bad time of my life, I would say. It was not like I was like that, okay, college is gonna be very good and this and that, but it was not like that. Okay, so my mother came to my college, and some random guys said something very weird remark on my mother, and I felt really bad about it. Okay, and I said to my mom कि आप मेरे college में मत आना, because I just don't feel that you wore appropriate clothes and people were like talking shit about you, and I don't like it. Okay, so आप मेरे कॉलेज में मत आना. She took it completely differently because she has her own mood swings and everything. So the thing is that I was like those 2 महीने से I have not since 2 months I have not gone to my college, and it was Diwali function, and I went to Diwali function, and some random guys, the classmates जिनकी मैं शिकायत की थी, they took my picture and they made a fake ID of mine. They made my fake ID, and in October there were Diwali, and after November मुझे पता चलता है कि okay, in November मुझे पता चलता है कि okay, there is a fake ID of my on Facebook, because Facebook was very new at that moment. It was very relevant at that moment into 2012 and 2013. So I kind of get the fact that okay, I have been a victim. I don't like to use the word victim. So I have been, but I have to do that. So I have been a victim of cyber crime. Okay, so I told my mom कि पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, अब ये तो वही जाने, कि 50 फ्रेंड्स पे मुझे पता चल गया था that I have been victimized as a cyber crime, and some people have made this fake ID of mine. Okay, अब आई हैव नो आइडिया कि वो लोग मेरे फोटो को लेकर के, मेरी आईडी बना करके, कृति ठाकुर की आईडी बना करके, वो मेरे आईडी से उस फेक आईडी से वो लोग क्या बातें कर रहे थे. आई टोल्ड माई मदर, एंड माई मदर टुक इट रियली टेक फॉर ग्रांटेड कि बन गई होगी, बना दी होगी, किसी ने डीएक्टिवेट कर देगा, मतलब इस तरह से उन्होंने लिया. और वो काफ़ी परेशान भी थी मेरे नाना की वजह से. नाना की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, एंड उस समय हमारे काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, मतलब मैं कुछ बोलती थी, वो कुछ बोलती थी. सो इट वॉज लाइक दैट ओनली.
एंड उसके बाद 50 से 150 हो गए, फिर 150 से 200 हो गए, 200 से 300 हो गए, एंड दैट्स हाउ दिस ऑल फेसबुक आईडी का केस हो गया. नाउ जब 300 हो गए तो आई वाज लाइक कि अब तो इस पे 300 हो गए हैं, प्लीज नाउ टेक सम एक्शन. So this is a very reputed college of my city, and the dean of my city is a very rich, powerful, and very crazy woman, I would say. She can do anything to get money out of people's pocket, and she is a crazy woman, I would say. And after that, my mother was like कि कहीं मेरी लाइक मैं डिफेम ना हो जाऊँ. मैं वैसे काफ़ी हो चुकी थी एट दैट मोमेंट कि ये तो लड़कों से ऐसी बात करती है, ये वो. सब लोग मुझे मेरे ही कॉलेज में अजीब नज़रों से देखा करते थे, और मतलब देख रहे थे. एंड माय मदर, जहाँ तक कि मेरी मम्मी की बात है, तो उनसे भी मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रहा कि वो अपने साथ पुलिस लेके गई रात के टाइम, जबकि उनको पूरे स्टूडेंट्स के सामने लेके जाना चाहिए था ताकि बात सब लोगों तक पहुंच पाती, है ना. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. और उन्होंने वो रात को लेकर के गई, और जिन लड़कों ने मेरी फेक आईडी बनाई थी पता लगाया गया, और उनको डराया गया कि हम तुमको पुलिस में भेज सकते हैं. पर मेरी मम्मी ने उन लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, विच इज़ ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज अगर वो मेरी मम्मी उस समय उनके लिए एक्शन लेती तो वो लोग मेरे से दुश्मनी करते, क्या पता क्या करते. तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग उस आईडी पे थे, या अगर आप में से कोई भी स्विफ्ट कॉलेज का कोई, ओ गॉड आई हैव टेकन नेम, उस कॉलेज का, आई एम वेरी सॉरी फॉर टेकिंग द नेम, अगर उस कॉलेज का कोई भी बंदा लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, मेरे चैनल को जानता है, मुझे जानता है, तो मैं आपसे क्लियरली बोलना चाहूँगी, क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि वो मैं नहीं थी. अगर मैंने आपसे कोई गलत बात करी, कोई गंदी बात करी, कोई चीप बात करी, कोई वल्गर बात करी, आपको ये कहा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, आपको कुछ अजीब से पिक्स भेजे, ये जो भी, मतलब लाइक मेरे पास काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ का बैगेज है. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो मैं थी, ओके, आई एम क्लैरिफाइंग राइट नाउ, राइट हियर, इन दिस वीडियो, दैट वो मैं नहीं थी. ओके, वो कोई दूसरा लड़का था मेरी क्लास का, और उसने मेरी फेक आईडी बनाई थी, एंड वो मैं नहीं थी. डेफिनेटली वो मैं नहीं थी. मैं इस टाइप की लड़की नहीं थी. मैं उस समय भी, इवन इन 2012 में बहुत इंट्रोवर्ट थी. मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, और लोगों ने उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया है. ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ. उसी के साथ साथ मेरी एक और, मैं उनको भी मेंशन करना चाहूँगी, बिकॉज शी दैट द डीन ऑफ दैट कॉलेज, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं. उसके बाद भी मैं क्लैरिफाई ये करना चाहूँगी कि जो डीन ऑफ दैट कॉलेज है, जिनके कॉलेज में मेरी साइबर क्राइम होकर के मेरी फेक आईडी बनी है, वो हमारी पूरी सिटी में लोगों को, और बिकॉज ऑफ माई मदर्स इमेज एंड बिकॉज ऑफ माई इमेज, वो सब लोगों को, शी टोल्ड माई मासी, बिकॉज दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रोग्राम हर साल होता है, जिसमें मेरी मासी जाती है, मेरी मम्मी जाती है, मेरी दो तीन मिलने वाली आंटियाँ जाती हैं, मतलब 2-3 मिलने वाली आंटीज़ हैं मेरी, जो ग्रुप की हैं, और वो वहाँ जाती हैं. और वो जो डीन ऑफ द कॉलेज है, वो भी वहाँ की मेंबर है. वो सब औरतों कहती है कि ओ माय गॉड, मेरी मम्मी को कहती है कि अरे मैम, आपकी जो और आपकी डॉटर हमारे कॉलेज में नहीं आएगी क्या, नहीं आना चाहती वो हमारे कॉलेज में. और वो मुझे इस तरह से डीफेम करती हैं कि एक तरफ तो तुम्हारे कॉलेज के लड़कों ने, मतलब मेरे साथ साइबर क्राइम कर दिया, और उसके बाद तुम सबको कहते फिर रही हो कि है ना, वो आपकी जो डॉटर है वो हमारे कॉलेज में क्यों नहीं आएगी. देखिए, मेरी आंटीज मुझसे आके पूछ रही हैं कि बेटा तू उनके कॉलेज में क्यों नहीं जाती, एंड आई हैव टू गिव देम आंसर.
देन आप ये बात उनसे क्यों नहीं पूछती कि उनके कॉलेज में मेरी इस तरह की फेक आईडी बनी थी? इट वॉज लाइक रियली इरिटेटिंग एंड आई एम रियली अफेंडेड बाय दैट। आई एम रियली अफेंड एंड दिस थिंग इज वेरी ऑफेंसिव। आपके कॉलेज में क्राइम हो रहा है और आप सबसे जाके कह रहे हैं कि अरे जिस लड़के के साथ क्राइम हो गया उसके लिए अगर हम आपकी इज्जत बचा रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, तो कम से कम आप भी तो दूसरे की इज्जत बचा लीजिए, शर्म कर लीजिए थोड़ी सी। पर वो नहीं करेंगी, वो कोई बात नहीं। आई गॉट सो इरिटेटेड बाय द थिंग दैट मैं क्वेश्चनेबल हूँ। मतलब मेरी आईडी उनके कॉलेज में बन जाती है और मैं क्वेश्चनेबल हूँ, ये सबको ये बताने के लिए कि मैं क्यों उनके कॉलेज में कंटिन्यू नहीं कर रही, मैंने क्यों उनके कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन नहीं करी, या मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उनके कॉलेज से नहीं किया, या प्लेसमेंट नहीं लिया, just because she wanted the sixth semester fees by my mother. And there is a one person also, she was my coaching teacher. I won't take names again, but this time I'm going to go to this organization's program, and in mic I'm gonna ask her that, ma'am, are you gonna let me live or not? Why are you defaming me? Why are you doing this? I know मुझे इस बारे में, मुझे इस चीज़ का कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, but she is doing this. I mean, it's crazy, it's so irritating. चलो मैंने मान लिया my mother is a little foolish girl, a little foolish person, that she thought that मेरी बेटी का नाम उड़ेगा, उससे बेहतर ही है कि मैं इनसे वो कर लूँ, पैचअप कर लूँ। वो चलो उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने उनके कॉलेज का नाम बचाया, वो भी चलो अच्छी बात है। बट आफ्टर दैट जिन लोगों ने आपके साथ इतना अच्छा किया है, वी डिजर्व द गुड थिंग फ्रॉम यू, नॉट द ऑफेंसिव डिफेमिंग। मेरे इमेज पे लांछन लगाए कि ये नहीं आ रही हमारे कॉलेज में, इसको कोई प्रॉब्लम है। वाई आर यू डूइंग दिस सच स्टूपिड थिंग्स? जबकि गलती पूरी तरह से आपकी है कि आप किसी स्टूडेंट को गाइड करने के लिए नहीं वो कर सकी। चलो छोड़ो उस बात को। तो उसके बाद आते हैं कोचिंग की बात पे। तो जब मैं वहाँ उस कॉलेज में कोचिंग कर रही थी, वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑफ आउटसाइड, जब मैं वहाँ कोचिंग कर रही थी तो there was a ma'am and she told me good amount of 25,000 of all subjects की, सारी सब्जेक्ट्स की कोचिंग के लिए आपको 25,000 रुपये कोचिंग के लिए देना है। एंड आई वाज लाइक मैम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शी इज़ लाइक कि ओके सिर्फ 13,000 में आपको ये जो मेरे अंडर जो काम कर रही हैं वो आपको कोचिंग कर देंगी। सो बेसिकली that the other girl, okay, she cannot speak English properly. She was coaching me, ठीक है, and she was doing only what I was, you know what I, at this moment when I am just reminding everything, I'm just feeling like how foolish I was to not be a practical woman. I'm just so grateful that I have met so many practical people in my life. Okay, and yeah, so she was coaching me. She was coaching me and she was misguiding me all the time. Okay, so she like whenever I say that didi this is this a good career for me, is this a good line for me, you know, I can do my BA, I can do different course, I can do that, you know. So she always tells me, because she wanted my money,
just because she is so much about money. I mean, in this world, everything is about money. She is so irritating. She always tells me whether I'm crying, whether my mother is fighting with me, whether I'm telling her my personal issues to her, whether I'm telling her that my grandfather is very ill, whether I'm saying that my grandmother was crying today. मैं उसको कुछ भी बोलती, शी यूज टू टेल मी कि अभी हम ये पढ़ लेते हैं, एंड अभी तू ये डिग्री कर ले, एंड अभी तू ये डिग्री कर लेगी तो यू आर गोना हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. हाउ एम आई गोना हैव प्रैक्टिकल नॉलेज व्हेन आई एम जस्ट ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स? जब मेरे दिमाग में, जब मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो रही है, जब मेरी मम्मी मेरे से झगड़ा कर रही है या मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरा ध्यान पढ़ाई में लग नहीं रहा है, तो मैं कैसे मैं ये कर लूँगी? और वो करके मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा? क्या मुझे मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे? क्या मुझे स्टडी का जो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ हमने स्टडी करी है, हमने किसी चीज़ के लिए रिसर्च किया है, हमने कोई काम किया है, क्या वो चीज़ मुझे मिल जाएगी? वो सेटिस्फैक्शन मुझे उन दीदी के साथ कभी आता ही नहीं था. एंड द मिनट okay, I studied in that college 2 semesters, and the minute I was like that, okay, I am not able to do this anymore in my life. And the minute I stopped studying in that college, that lady, that didi, she has such a, I would say she is very double-minded person. She is very practical, but she is like that कि ये लड़की तो फूलिश है बिल्कुल, और इसको पागल बनाना बहुत आसान है. बस 2-3 आइडियलिस्टिक बात कर दो कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन तो तुझे करना ही है, ये तो तुझे करना ही है, वो तो तुझे करना ही है ना, तो तू यही क्यों नहीं कर लेती, यही पे क्यों नहीं कैरी ऑन करती, ये क्यों नहीं करती. मतलब उनको पता था कि ये लड़की बहुत ईजिली मिसगाइड हो जाएगी. सो शी वॉज डूइंग द सेम थिंग. एंड आफ्टर स्टॉप लर्निंग, मैंने जब वहाँ जाना, जब मैं फेक आईडी के इंसिडेंट के बाद वहाँ गई, तो किसी भी स्टूडेंट को कुछ पता नहीं था. दे ऑल वर लाइक वॉचिंग मी बाय वेरी क्वेश्चनेबल आईज, एंड आई couldn't bear those eyes on myself because I have not done any wrong. मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था. So I was like, that's it, I cannot handle this anymore. Okay, I need a break. I literally needed a break at that moment. And then I was like, I don't know about you, I don't know about this graduation degree or not. I'm gonna carry on. I'm leaving for 1 semester. I just need to give break to my mind, and I really need to find out that what I really want to do, because I don't see myself sitting in front of computer and doing coding and making websites, or doing whatever BCA or BSc IT people do. Basically the C++ coding and the Java and everything. So I was like not into it, people like it, that they find it like a game or something like that. They have a background before that. Okay, I have, it was like an alien planet for me, and that's why people have taken good advantage of me. But I'm clarifying, अगर आप उस आईडी पे थे, जो फेक आईडी मेरी बनी थी, there are a lot of people, they come and they ये वीडियो जो है ये इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं and they ask me that okay, give us that okay, on that ID you were doing this and that. I was not on that ID. That was a fake ID. Okay. I know it's very
old thing, old topic, but it is something which irritates me even right now. So I'm just clarifying this right now. And hats off to the dean of that college, hats off to the teachers of the college, hats off to the student of the of that college, all the students of the college, and hats off to that didi who gives me so nice advices that no nahi kriti, you have to do the graduation, you have to have the practical knowledge, you have to give it to that, you know. She doesn't give me like even uh, one advice that can be uh, worthwhile, जो कि सुनने लायक हो. And I guess that was a very important lessons. I should not regret these lessons, that people are crazy about money in this world. People are crazy about money in this world. And people are, and जब आप किसी बुरे समय से निकलते हैं तो आपको समझ आता है कि लोग किस तरह से आपको यूज़ कर सकते हैं. और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपके खुद के रिलेटिव्स, जो आपके खुद के घर के लोग हैं, जो कि जिनको आप कहते हो कि जिनके लिए आप घमंड लगाते हो कि अरे यार ये जो मेरी मम्मी मेरे से इतना प्यार करती है, मेरे नाना ने मेरे से इतना प्यार करते हैं, ये जो लोग हैं मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे परिवार वाले इतना प्यार, उन लोगों का भी जो असली और अच्छा चेहरा है ना, वो आपको उस समय देखने को मिलता है जब आप एक अच्छे समय से एक बहुत बुरे समय से गुजर रहे होते हो, पर वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है. सो thank you guys to listening me and to listening this whole stupid story. If you guys are not interested, then skip this video. Don't watch this video. In this video I am just crying over spilled milk. I'm just I am in remorse and regret that कि पता नहीं मैंने क्या क्या किया है. पर वो क्या होता है ना कि जब तक आपके साथ कुछ चीज़ें नहीं होती तब तक आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं. मैंने ये जो बाल हैं ये मेरे हिटलेस कर्ल्स हैं. मैंने बाल धोए और ऊपर ऐसे गोल गोल करके बांध लिए, और इससे आप बहुत अच्छे कर्ल्स बना सकते हैं. तो थोड़ा मेकअप का टिप भी मैं आपको दे देती हूँ. तो गाइज अगर कोई इंसान आपके पास आता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, मिसगाइड है, या उसकी बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, तो प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप उसे गाइड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उसे मिसगाइड मत कीजिए सिर्फ पैसों के लिए. या यू कांट बिलीव दिस, मैंने इस लड़की को बोला कि मेरे ग्रैंडफादर नहीं रहे, एंड शी हैजंट सेड एनीथिंग टू मी. She knew that how much I love my grandfather because I always tells her. ये लड़की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी कि मैं इसके सामने रोती रहती थी और ये मेरे आंसू तक नहीं पहुंचती थी. And then I found her at a place where it's very डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट कि ये यहाँ क्या कर रही है. आई मीन ये लड़की जो इतनी आइडियलिस्टिक बातें करती थी, ये यहाँ क्या कर रही है. शी वॉज क्रेजी एंड शी वॉज मेकिंग मी क्रेजी. सो आई डोंट नो वॉट शी इज़ डूइंग राइट नाउ, बट आई वोंट टेक हर नेम. आई डोंट वॉन्ट टू डिफेम एनी वन लाइक पीपल आर डूइंग, जो कि इतने गिर चुके हैं कि क्योंकि उनके कॉलेज में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की हरकतें हुई हैं. दीज पीपल आर, वो कुछ भी कर सकते हैं सामने वाले को बदनाम करने के लिए और अपना नाम साफ करने के लिए. सो दिस इज़ अ गुड 39 minutes वीडियो गाइज, एंड थैंक यू सो मच टू लिसनिंग. एंड मैं भी ऐसे करने लग गई पता नहीं क्यों. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड टू लिसनिंग माई फुलिशनेस and how I get
आउट ऑफ इट नाउ आई गेट आउट ऑफ दैट या। तो अगर आपका समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम टेलिंग यू दैट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी आपका अच्छा समय आ जाएगा. सो यू जस्ट डोंट हैव टू फील, नथिंग इज टेम्पररी, everything is constantly changing, you know. Nothing is permanent, everything is temporary. I'm sorry, I said nothing is temporary. Everything is not permanent, everything is temporary. This thing is gonna go. I went to so many people and I have cried over spilled milk, but उससे कुछ नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं है. जो समय आपको बुरा निकालना है वो निकल जाएगा. समय बुरा हमेशा नहीं रहता है. तो these are very philosophical things for a makeup channel, but okay fine. ये वीडियो इस पे भी जाएगा, इंस्टा पे भी जाएगा. Okay, bye guys, this is Katie here and the next video is definitely is gonna be about makeup.